Okay, now we'll start our new topic, that is functional group. As we already know what is functional group, अपने को पहले से ही पता है, हमने स्टडी कर लिया कि फंक्शनल ग्रुप है क्या. अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, if there is any organic compound, what is an organic compound? It is a chain of carbon with hydrogen atoms attached to it. ठीक है, these all are hydrogen atoms. But if I attach any atom other than hydrogen or a group of atom, don't worry, that thing can be attached to two bonds, two carbons, that can be attached to a single carbon, but as of now we'll study only which is connected to a single carbon. ठीक है, that thing can make a single bond, that thing or atom or a group of atom. देखो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, हाइड्रोजन की जगह अगर कोई भी दूसरा एटम XYZ एनी एटम और a group of atom is attached to a carbon, then that thing is known as functional group. That thing is known as functional group. ठीक है, very important. When any functional group is attached to any organic compound, ठीक है, by replacing hydrogen, then very important, the property of that organic compound will now depend on that functional group. अगर मैं कोई भी functional group ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो अब उस पूरे compound की chemical properties कौन डिसाइड करेगा? The chemical properties and other few physical properties now will be decided by this functional group. So एक एक करके हम अपने सारे के सारे functional group देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हेलो एल्केन्स. ओके, याद रखना फंक्शनल ग्रुप, उसके नाम से बहुत कुछ पता चल जाना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट, इन योर सिलेबस नोमेनक्लेचर हैज बीन डिलीटेड. मतलब क्या नोमेनक्लेचर का? स्ट्रक्चर मेरे सामने बनाया है और मेरे को उसका नाम लिखना है. लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है, अगर क्वेश्चन में नाम लिखा है तो स्ट्रक्चर कैसे पता लगाओगे? समझ में आया कि नहीं? तो कहीं ना कहीं the syllabus has been deleted, that is nomenclature, but most important you must get an idea by name कि स्ट्रक्चर क्या होगा. समझ में आया कि नहीं? यस और नो? मैं किसी की शक्ल देख के बता दूंगा कि अगर मेरे सामने एक फोटो है, हाँ भाई ये फोटो राजेंद्र बांगड़ा की, ये वाला पार्ट डिलीट हो गया है, लेकिन अगर मेरा नाम क्वेश्चन में लिखा है तो मेरे नाम से तो पता चल जाना चाहिए ये बंदा कौन है. यस और नो? So this must be known. So while doing the functional group, these things we must know. So first functional group is halo alkanes or halo alkane. Very important. यहाँ नाम से तुम्हें पता चल जाना चाहिए. Halo means halogen atom. This halo is representing halogen atom. And what is this alkane? It is representing any alkane group. Okay, but here it will be any alkyl group. I will let you know what is this. Example लेते हैं हम मीथेन का. मीथेन, formula of methane is CH4. मीथेन is alkane. alkane है मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है. 1 2 3 4. Now what is a functional group? अगर मेरे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है and I replace any of its hydrogen by any other atom, और अगर इस हाइड्रोजन को हटा के मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, कोई भी हेलोजन के साथ अगर इसका बॉन्ड बना दिया, so now this will convert into a halo alkane. हेलोजन एटम्स कौन से हैं? हेलोजन ग्रुप वाले, that is क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, that is Cl, Br and I. अगर मैं यहाँ पे Cl लिख देता हूँ, now this will be CH3Cl. yes or no? इसका नाम है क्लोरो मीथेन. If it would have been bromine है
इसका फॉर्मूला हो जाता CH3 Br, इसका नाम हो जाता ब्रोमो मीथेन। गॉट इट? यस और नो? वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बताओ कि ये कौन सी चीज है? ये तो मैंने एक हेलोजन तो इसका अटैच कर दिया। व्हाट इज दिस थिंग? विच ग्रुप इज दिस? एल्काइल ग्रुप। ओके, सो अगर यूं पूछा जाए कि हेलो एल्केन कैसे पता लगाना है, सबसे पहले हेलो एल्केन के नाम के आगे या तो होगा क्लोरो, आइदर इट विल बी ब्रोमो और इट विल बी आयोडाइन। बाय दिस नेम यू मस्ट नो कि हाँ भाई किसी एक हाइड्रोजन की जगह इन तीनों एटम में से कोई एक एटम है, you must directly get it, it is halo alkane or it is having any halogen functional group। okay, pay attention है। इसका जनरल फॉर्मूला है RX। so what is R है? R is alkyl group। कोई भी alkyl group हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, any alkyl group this may be। and what is X है? X is halogen। got it? Yes or no? Yes। So this was our halo alkane। चलो एक बार अपने को दूसरा एग्जांपल देते हैं, मिथ इथ प्रो। मिथ इथ प्रो, दिस इज प्रोपेन। यस और नो? दिस इज प्रोपेन। प्रोपेन 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं यहाँ पे किसी भी हाइड्रोजन को हटा के ब्रोमीन लगा दिया, सो नाउ दिस इज विच फंक्शनल ग्रुप? हेलो ग्रुप। एंड दिस इज नाउ एन हेलो एल्केन। ओके, इसका नाम कैसे करेंगे? मिथ इथ प्रो। ये प्रोपेन था। ये कौन सा एल्काइल ग्रुप है? प्रोपाइल एल्काइल ग्रुप। तुमको इंफॉर्मेशन पता चल जानी चाहिए नंबर ऑफ कार्बन एटम से। इसका नाम क्या होगा? ब्रोमो प्रोपेन हेलो एल्केन। नाम से ही पता चल जाना चाहिए। समझ में आएगा नहीं? यहाँ हेलो एल्काइल नहीं लिखा है। इसका मैंने जनरल फॉर्मूला बताया कि देखते ही पता चल जाना चाहिए कि हेलो एल्केन है या नहीं। क्या मेथड है? अगर एक हेलोजन एटम है और दूसरा पूरा के पूरा एल्काइल ग्रुप, यहाँ कौन सा एल्काइल ग्रुप है? प्रोपाइल। गॉट इट? और ये अपना हेलो एल्केन होगा। गॉट इट? यस और नो? सेकेंड फंक्शनल ग्रुप इज अल्कोहल। वेरी इंपॉर्टेंट। अल्कोहल के अंदर इथेनॉल तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। सेकेंड वन इज अल्कोहल। देखो, ऑल, किसी भी नेम के लास्ट में ऑल देख रहे हो, सफिक्स इज ऑल, तो वो कौन सा होगा? अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, देखो तुमको नाम से पता चल जाना चाहिए। नाम दो पार्ट में होगा, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, पहले का पार्ट और आखिरी का पार्ट। मीथेनॉल, इथेनॉल, लास्ट में ऑल आ रहा है तो समझ जाओ कि ये अल्कोहल ग्रुप है। मिथ इस अल्कोहल ग्रुप में कितने कार्बन्स है? इथ इस अल्कोहल ग्रुप में कितने कार्बन्स है? ठीक है, इसका फंक्शनल ग्रुप जो है दैट इज OH। ठीक है, अब देखो एक बार मिथेनॉल बनाते हैं। मिथेनॉल क्या है? मीथेन दैट इज CH4, एक हाइड्रोकार्बन है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कोई भी हाइड्रोकार्बन की जगह पर अगर दूसरा एटम, पहले वाले हेलो एल्केन में सिर्फ एटम आया था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या फिर ग्रुप ऑफ एटम। वेरी इंपॉर्टेंट, अल्कोहल के अंदर ग्रुप ऑफ एटम है। विच ग्रुप इज दैट? दैट इज OH। समझ में आएगा नहीं? नाउ दिस इज अ व्हाट? अल्कोहल। विच वन? दिस इज मीथेनॉल। ऑल से पता चल गया कि भाई इसमें फंक्शनल ग्रुप ऑल अल्कोहल है। मिथ नंबर ऑफ कार्बन एटम। लिखने का तरीका ये हो सकता है CH3OH, इसको ऐसे क्यों लिखा गया है CH3OH? OH मींस ये ग्रुप अलग है, इसको ऐसे लिखने का भी तरीका है।
वेरी इंपॉर्टेंट। ये कौन सा ग्रुप है? तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? ROH। R क्या होगा? एनी एल्काइल ग्रुप। समझ में आया कि नहीं? OH उस एल्काइल ग्रुप के जो अटैच किया गया है। याद रखना, तुमको नंबर ऑफ कार्बन एटम से भी पता होना चाहिए। यस। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। यस। ठीक है। CH4, इसमें ये फॉर्मूला लागू हो रहा है। CH4 के अंदर CnH2n, कोई भी एल्केन है ना उसका ये जनरल फॉर्मूला है। एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1। एक हाइड्रोजन हट गया तो +2 की बजाय +1 OH, यूं भी लिखा हुआ हो सकता है इसका जनरल फॉर्मूला। दोनों में से कोई भी हो, थिंग इज सेम। ये वाला फॉर्मूले तो हमने किए ही थे जब हमने एल्केन, एल्काइन, एल्कीन्स पढ़े थे। ठीक है, इसलिए मैं बार बार ये वाला नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ ये वाला लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि हमने एल्काइल ग्रुप में भी देखा ही था। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, हमने एक चीज पढ़ी थी होमोलोगस सीरीज। यस। हमने एक चीज पढ़ी थी होमोलोगस सीरीज। डोंट वरी, पहले इसके अंदर एक बार हम इथेनॉल कर लेते हैं। इथेनॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक, इथेनॉल मतलब पता तो चल गया कि इसके अंदर OH ग्रुप होगा। इथ कितने कार्बन? दो 2 कार्बन्स, 1 2, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। समझ में आया कि नहीं? यहाँ OH, तो ये इथेनॉल का स्ट्रक्चर है, दैट इज CH3 CH2OH। यूं भी लिखा हुआ हो सकता है ये C2 1 2 3 4 5 H5OH। यूं भी लिखा हुआ हो सकता है ये। कंफ्यूजन नहीं खाना है, दोनों एक ही चीज है। समझ में आया कि नहीं? ये वाले फॉर्मूले से इसका स्ट्रक्चर मेरे को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। पहले ये वाला CH3, उसके बाद ये वाला CH2 और बाद में ये वाला OH। दिस इज फॉर्मूला फॉर इथेनॉल एंड दिस इज C2H5OH। दिस इज आल्सो फॉर्मूला फॉर इथेनॉल। वेरी इंपॉर्टेंट, इथेनॉल अल्कोहल वही है जो कि मार्केट में ऐसे अल्कोहल बिकता है। अगर इथेनॉल के अंदर तुम 5% पानी डाल देते हो, सिर्फ रेक्टिफाइड स्पिरिट, प्योर इथेनॉल आपको दिया ही नहीं जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इथेनॉल के 2 यूज है, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक। डोमेस्टिक तो समझ में आ गया होगा, ड्रिंकिंग के लिए। यू माइट हैव हर्ड मेनी पीपल ड्रिंक, व्हाट इज इट? दैट इज अल्कोहल। और उस अल्कोहल के भी अंदर सबसे ज्यादा कौन सी होती है? इथेनॉल। प्योर इथेनॉल यू विल नेवर गेट। इंडस्ट्रियल यूज में भी यूज होता है। डोमेस्टिक यूज के लिए इथेनॉल बड़ी ही महंगी आती है, ठीक है, और इंडस्ट्रियल यूज के लिए बड़ी ही सस्ती। तो अगर आप इंडस्ट्रियल यूज के लिए लेते हो, तो आपको सस्ती मिलेगी, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, जो इंडस्ट्रियल इथेनॉल होगा उसके अंदर क्या ऐड कर देते हैं? पॉइजन। क्या ऐड कर देते हैं? पॉइजन। अगर किसी भी इंडस्ट्री में अल्कोहल यूज हो रहा है, उसके अंदर इथेनॉल है, तो वो प्योर इथेनॉल नहीं होगा, उसके अंदर क्या ऐड होगा? पॉइजन। क्यों? ताकि वहां का लेबर इसको कंज्यूम ना करे, और वो जो इथेनॉल उसको डीनेचर्ड इथेनॉल या फिर डीनेचर्ड अल्कोहल भी कहते हैं। इसका ओरिजिनल नेचर क्या होता है? ये पॉइजनस नहीं है, इसके अंदर पॉइजन डाल के इसका नेचर खत्म कर देते हैं, डीनेचर कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? इथेनॉल, इट इज कलरलेस, dissolves in water. This dissolves in water in any amount, ठीक है। और दिस इज वेरी वॉलेटाइल, मतलब आप रखे रहोगे ना, ये अपना धीरे धीरे वेपर बनकर उड़ती रहेगी और आग भी बड़ी जल्दी से पकड़ेगी, ठीक है। इथेनॉल याद रखो। अब एक चीज याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट, मिथ इथ प्रॉप। मिथेनॉल
इथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। फॉर्मूला लिख देते हैं। मिथ है तो एक कार्बन, इथ है तो दो कार्बन, प्रोप है तो तीन कार्बन, तीन कार्बन, ओएच, ऑल है तो OH, ऑल है तो OH, ऑल है तो OH। अब सारी जगह हाइड्रोजन कनेक्ट कर दो। ठीक। CH3OH इसका फॉर्मूला है। इसका C2 1 2 3 4 दैट इज H5। इसका C3 1 2 3 4 5 6 7 OH। अब अगर मैं कहूं इसके अंदर कितना कार्बन है, इसके अंदर कितना है, कितने कार्बन ज्यादा है, एक। यहाँ एक है, यहाँ दो, तो 1 का डिफरेंस हुआ। यहाँ H कितना है 3, इधर कितने हैं 5, कितने का फर्क हुआ H2, इसमें भी CH2। प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल जाते जाओगे सब में CH2 का गैप है। तो कौन सी सीरीज है ये, होमोलोगस सीरीज। वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया कि नहीं। हेलो एल्केन्स भी होमोलोगस सीरीज बनाएंगे, अल्कोहल भी होमोलोगस सीरीज बनाएंगे। तुम्हारी क्लास में जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सब के सब होमोलोगस सीरीज बनाएंगे। ये एक का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी तुम्हें खुद ही पता चल जाना चाहिए। तुम सारे फॉर्मूले बनाओगे ना, सब में 2 का गैप होगा। कितने का, CH2 CH2 CH2। तो समझ जाना कि ये हेलो एल्केन मतलब जितने भी हेलो एल्केन, कीटोन बिटोन सब के सब क्या बना रहे हैं, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तुम्हारे स्टैंडर्ड के सारे फंक्शनल ग्रुप में होमोलोगस सीरीज है। व्हाट इट, यस और नो? yes.